तुम मुझसे हमेशा गेट क्यों खुलवाते हो? ये पार्टिसिपल का तो नहीं, वैसे बनाना है ना। Why did you? Sorry. जैसा खुलवाते हो। जैसा Why do you सेंटेंस। Why do you? open the gate? नहीं, why do you मुझसे Why do you? open the door? Why do Force you हो रहा है make सर, me? Why force do से you ब्रेक लगाएं। make सर ये कॉन्सेटिव से बनेगा। Causative है। हाँ, why do you make me open the Open the door? हम्म तुम हमेशा मुझसे गेट क्यों खुलवाते हो? व्हाई डू यू ऑलवेज मेक मी Make me ओपन open द the door. डोर या गेट? ओके। तुमने कहा था कि तुम टीवी रिपेयर करवा दोगे। You said you will uh, You क्या will लगेगा? open the door. make it get लगी। नहीं, हाँ, चोर क्या था, टीवी देखना। you would You would get get the the TV TV repaired. repaired. You 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 told will you will get that TV repaired. you told that you you would get the TV repaired. टोल्ड अकेला तो नहीं आता है, तो टोल्ड मी करना पड़ेगा, अच्छा, नहीं तो तो सेड सेट अकेला। कर देंगे सर, सेट कर देंगे। यू सेड दैट यू वुड गेट द टीवी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड, हाँ। तुमने उसे क्यों डांट सुनवाया? Why did you Why make why him did you scolded? make him Made him Scolded. scolded ही होगा ये शायद। scold हो जाएगा? Why did you get him scolded? Get him scolded, yes sir. तुम मुझसे क्यों व्रत रखवाते हो? फास्ट Why रखवाते do हो। you make me I keep make the you fast? Why Why do you make why me do you keep make the me fast? fast? Why did you get me keep fasting? Kept fasting. Why did you make me? Why did you make me make me डेट make क्यों me? आएगा, रखवाते हो Date आएगा। तो आएगा ना। Why do you Why do you make make me me fast? keep a fast? Did you पास्ट की बात ही नहीं। अच्छा, हाँ। Make me keep fast. Keep a fast. हाँ, keep Why fast. do you make me keep fast? हम्म। कीप की जगह ऑब्जर्व भी लगा सकते हो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व भी होगा। सर ऑब्जर्व का स्पेलिंग वही ऑब्जर्व वाली होगी ना, वो भी SERV। जी। ओके। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुमसे कुछ नहीं खरीदवाया। Since I got married, I didn't make you purchase anything. Since we got married, खरीदवाना I didn't. Since I have Since I have been married, I didn't get anything purchased from you. I have been I married. haven't I have not been making you buy something since we got married. since I got married, I haven't made you buy anything. Since I have been married, I didn't make you purchase anything. सर ये वाला कंटिन्यूअस में होगा ना, ये प्रेजेंट सिंस वाला Perfect. पास्ट इंडेफिनिट और बाकी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट Present परफेक्ट। perfect है दूसरा। I haven't made you buy. से हमारी शादी हुई है। Since we got क्या कह रहे हो? ये Since we got married, we got Since we have been married. I have been make you purchase anything. जब से I हमारी haven't शादी made हुई you है buy me.
I haven't been making I you haven't buy didn't भी हो जाएगा शायद. making I you didn't buy make you buy buy me. ये anything तो since सिर्फ we इतना हो married. जाएगा जब से मेरी शादी हुई है, सिंस आई हैव बीन मैरिड. वी हमारी Since we got married, I have been made you purchase anything. I haven't been purchased anything since we got married. अच्छा दिव्या, हम खरीदने के लिए भी तो गेट कहते नहीं, हैं. we haven't के बाद made आएगा ना. We haven't made you हाँ वो मेड हम buy me anything. खाने के लिए भी तो गेट कहते हैं, तो वो यूज कर ले तो मुझे खरीदवा दो, या तो उसके लिए भी तो हम लोग गेट यूज करते हैं. तो वो गेट यहाँ लगा दी. रुकिए, जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुमसे कुछ नहीं खरीदवाया. So we haven't सर been एक बार बोले सर. सर को बोलने तो एक बार सर. सर को एक बार बोलता हूँ, उसके बाद सर ये करेंगे. I haven't been making you buy anything since we got married. ये भी ठीक है. अगर सीधा प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है तो सर मैं बोले since we got married, I haven't been made you purchase anything. फिर बीन क्यों लगा रही हैं आप? सर प्रेजेंट परफेक्ट. तो परफेक्ट में बीन लगता है. I haven't made you purchase anything. तो ऑलरेडी वीकली आ गया, फिर बीन भी वीकली पॉसिबल नहीं है दोनों साथ. नहीं, we haven't made you buy anything. Buy. मान लो आपको कॉजिटिव नहीं लगाना है, बिना कॉजिटिव के कुछ हो सकता है. हाँ बिल्कुल हो जाएगा. Since I got married, you didn't buy for me anything. ऐसे भी. I haven't asked to buy anything since we got married. तो since we got married, I haven't asked you to buy anything. राइट है. ये ऐसे नहीं होगा सर. You didn't buy anything for me. तुमने मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा. बोल सकते हैं, लेकिन स्पोकन में मतलब मेन इंग्लिश में क्या होता है कि अगर सिंस वाला पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कर दीजिए. ओके. अच्छा. ये नहीं है. जब से तुम आई हो शोर मचा रही हो. Since you came Since here, you came, you are making you are making a noise. You are making noise since You have been making a noise. You have been making since you came, since you have come. You have been making noise ever since you came. हर रात न जाने कौन मेरे पौधों के पत्तों को कुतर जाता है. पत्तों को पत्तों को Every night, न जाने कौन. उतरने की क्या हुई? एक तो Crash कुतरना. कुतरने की निबल, होती एक है. निबल ढूंढने जरा. निबल मतलब एक कुतरना है क्या? सर NIBBL. ट्रिमिंग मींस भी होता है कुतरना. मान लो कोई जानवर ट्रिम थोड़ी करेगा. निबल मींस कुतरना. कोई जानवर करेगा तो निबल करेगा. यस सर. तो मिला क्या? नो सर बट होता है. आई थिंक NIBBL. जैसे कहते हैं चूहे सब जैसे हल्का हल्का खाते हैं निबल कहते हैं. हाँ, निबल. यस सर कुतरना थोड़ा Every थोड़ा खाना है. night, I don't know who has been nibbling nibbling on the plant, leaves of my nibbling plant. ऐसे भी nibbling, होता है. nibbling leaves of my plant Of my every plant. night. लेकिन रूटीन में बोलना है. कौन कुतर जाता है, कौन कुतर. Who nibbles. Who nibbles हो जाएगा. Who nibbling? Who nibbles. उतरता है. Nibbling कुतरना. So I don't know who nibbles. Who nibbles on My- the leaves of my plant. Nibbles the leaves of my plant Every night. every day. फाइन. जब से अंग्रेजी सीखना शुरू किया है कंफ्यूज्ड हो गई हूँ.
I got confused since I have been learning English. I have got Since I confused started, I have got. since I started learning English. Mhm. I got confused. जब से उसका विवाह हुआ है उसने सिनेमा हॉल का मुंह भी नहीं देखा है. Since she got married, she Married. She haven't. cinema hall. Please. She hasn't gone to cinema hall since she got married. मैंने किसी को कुछ करने को कहा था लेकिन अब तक वो किया नहीं गया है. I have asked to someone do anything, but he I didn't said complete that. I have something. asked someone to do something, but it haven't completed yet. I asked someone to do something, but it hasn't been done yet. Hasn't been done yet. Yes sir, been होगा वहाँ पे. जिस किसी का भी ऑडियो खराब है वो कृपया म्यूट कर ले. Whoever's audio is out of run is muted. Please mute. Out of order, na? One audio is not working. Whoever's audio is out of order, please mute. If anyone audio is spoiled, बोलते हैं, please stop it. Please mute audio if someone's mic is not working. अच्छा नहीं हुआ से बोला. सर और एक बार बोलेंगे क्या था वो मेन वाला. जिस किसी का भी ऑडियो खराब है वो म्यूट कर ले. शोर में चाह. जिस किसी का भी तो whoever आएगा सर. Whoever's mic is out of order, please mute. Please mute. हाँ. मेरा पेट भर गया है. I am done. I am full. I am full. I am done. I'm full, huh? I am full. Yes. सर I'm stuffed हो सकता है. I'm stuffed. Yes. क्या आप मुझे थोड़ा नमक पास करेंगे? Could you please pass the salt? Would you mind passing the salt, please? Yes. Would you mind? फटाक से कुछ बना देती हूँ. I make Immediately. I make anything immediately. something. I cook Something immediate. I make something immediate. Immediately I make something. I let make. I'm gonna make something quickly. I'm gonna make Quickly. I make it quickly. I am going to make something quickly. आज मैं वाटर फास्ट पर हूँ. Today I am on water fast. Today. Today I have water fast. I am on water fast. I have आएगा. I have कि I am on water. I am आएगा. I am on water fast भी हो जाएगा ना. I am I on have water भी हो fast सकता today. है. I have on water. मतलब इस तरह बोल सकते हैं कि आज मेरा फास्ट है. Today I am on water fast. Today I have water fast. ज़्यादा मत I am पकाओ. doing a water ज़्यादा fast मत today. पकाओ.
Don't Don't cook. cook. Don't cook. Don't overcook. दिमाग पका Don't क्या overcook. दिमाग दिमाग पकाने वाली बात हो रही है क्या? ज्यादा मत नहीं पकाओ। नहीं नहीं, दिमाग नहीं हो रही। सब्जी सब हो गया। अच्छा, नहीं बन रहा है। वो भी बता दो, दिमाग में पकाओ। Don't over. डोंट दिमाग पकाना मतलब डोंट इरिटेट मी अ लॉट। Don't irritate. हाँ। अरे तरी सूख जाएगा। It will be dry. Gravy get dry. गेटिंग ड्राई सूख रहा है। सूख जाएगा। सूख Will जाएगा। It will gravy होगा। will get dry. Don't overcook. The gravy तरी will get पका dry. ग्रेवी वो ये ग्रेवी देख रहे हैं। इसे धीमी आंच पर कुछ देर के लिए पकाओ। Cook it in slow flame for a while. Cook it light. हम लोग क्या कहते हैं ना कि सिम पे रखो, सिम पर रखो, सिम पर। Low flame Low Cook, flame. हाँ, Cook it in for low a flame. while. कुक इट ऑन स्लो फ्लेम। ठीक है, इसको इसके लिए एक छोटा वर्ड आता है आजकल, सिमर नाम से। Simmer. सिमर इट फॉर फ्यू मिनट्स। Let the simmer. जैसे आप सिमर बोलोगे, SIMMER सिमर, तो सिमर में धीमी आंच पकाना सब उसी में आ जाएगा। वहीं से सिम बना है सर, क्या वहीं से सिम बना है? इसको सिम पर रख दो, जी जी सिम जी, पे होगा है वो। वहीं से बना। हाँ, वहीं से सिम बना होगा। सिमर बोलो, ससुराल सिमर का सिमरन का। नहीं, सिमर का ही आता सिमर का। सीरियल। सर इसका PDF हो तो भेज दीजिएगा प्लीज, थोड़ा घर में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक। जी ध्यान से। अरे ये तो थोड़ा जल गया, मान लो चावल या कुछ भी, अरे ये तो जल गया। It's burn little bit. It's burn right. It's overcooked, sir. बंट नहीं, Burn कुछ little चावल bit. कई बार लिटरली जल जाता है, चिपक जाता है ना। It's burn. Sir, it got burned. It's burnt भी बोलते हैं। It's बर्न्ट, हाँ, burnt. इट गॉट बर्न्ड सब चले। It got burned. हाँ. इट गॉट बर्न। It's burnt भी बोल सकते हैं खाली। फिर इट्स नहीं कह सकते, इट बर्न्ट कहेंगे। It burnt. Okay. हाँ, क्योंकि जलता नहीं है, जल गया है। It burnt. सब्जी मैं काट दूंगा। I will I'll cut the vegetables. I will cut vegetable. सर यहाँ थोड़ा सा एक बात ये है, कहने में बड़ा फर्क आ रहा है। नॉर्मल हम कहते हैं मैं सब्जी काट दूंगा, अभी मैं कहता हूँ सब्जी मैं काट दूंगी। हम लोग बोलने की आप Can कुछ I और cook? कर लीजिए। I will cook the vegetable. आप कुछ और कर लीजिए, मैं सब्जी मैं काट दूंगा, तभी भी सेम ही रहेगा। Do something else. I will cut vegetable. I will cut the vegetable. I will chop it भी बोलते हैं आई ना विल कि I चॉप will इट, या कुछ लोग बोलेंगे लेट मी चॉप द वेजी, यू डू समथिंग एल्स, हम्म, तो भी कह सकते हैं। या आई विल चॉप द वेजिटेबल्स, यू पील द पोटैटोज। अरे आँच कम कर लो भाई। please slow Let flame the sim. please slow the Let's slow the flame. लेट फ्लेम्स ऑन सिम। लेट क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ कर दो। मतलब आप कर फिर दो वही हो रहा है ना। दो के चक्कर में फंस गए। अरे भाई, हाँ, yes. वो जाने दो, खाने दो। ऐसे भी बोलते हैं सर, जैसे टर्न आउट, जैसे टर्न द हीट भी बोलते हैं। Turn the flame slow. सबसे रिड्यूस आसान द हीट भी बोलते हैं। रिड्यूस द हीट, अंग्रेजों वाला है टर्न डाउन द हीट। टर्न डाउन द हीट। इसको चख के बताना, थोड़ा और स्पाइस डालूं क्या? Please taste. Should I add some more spice?
Please Please taste. taste. Should Can I I add should I some more add some Should I more add salt? more? Should I more spice or not? Should I add? Should Should I I अब मान add? लो कि Yeah, some should हमें I put? Taste some it. Should more I more? salt? अगर हमें शुड आई नहीं बोलना, मुझे बोलना है कि जरा इसको चखो, क्या इसको थोड़ा और स्पाइस चाहिए? चखो। अच्छा। Please taste it. Taste it. Please Taste. taste. Please Taste taste it. taste it and I have let- to add some salt or some spice. more spicy. taste it and check, do I need to add extra spice? मान लो मुझे आई नहीं बोलना है, सीधा बोलना है कि मान लो बिरयानी बन रही है, क्या इसको इस बिरयानी को थोड़ा और मसाला चाहिए? अच्छा, Need some spice. Is it more This from biryani Spice. needs some more Spice. spice. हाँ, तो डज इट मतलब Does आइटम, it? डज इट नीड Does मोर it? स्पाइस? does it need more Does spice? it? ओके। अरे नमक ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। उफ। मतलब खा रहे हो, बोलो अरे इसमें तो थोड़ा ज़्यादा नमक है यार। It's Common bit name. salty. It is more Oh no, salty. there is too much salt. It is more salty. It's salty. वो अच्छा है, जो सुजय ने बोला ना, इट्स बिट करके कुछ कहा था, क्या कहा था? It's bit salty. हाँ Bit salt. Salty भी बोल It's सकते bit हैं। salty. हाँ, There's सॉल्टी, too much बिट, salt. टू सॉल्टी, टू मच सॉल्टी, हाँ सब चलेगा। हो गया कि लिए कुछ नहीं आएगा सर? गेट वेट कुछ? नहीं ये नॉर्मल ही है कि इट्स सॉल्टी। It's अभी हम salty. salty कह दिया ना, तो फिर Salty मतलब कह ज्यादा दिया। नमक हो गया। मैंने ज्यादा नमक डाल दिया। I added two तो ये नमक ज्यादा हो much गया कुछ salt. ना के इसमें। ये जो Oh, बंदा it's- जो खाना खा रहा है वो कह रहा है कि अरे यार इसमें तो थोड़ा ज़्यादा नमक है, इट्स बिट So it's सॉल्टी, salt. It's bit It is salty. little bit more salty. अब वो पूरा बोलेगा तो यू हैव एडेड टू मच सॉल्ट, तब तो कोई बात ही नहीं है। टेंस तो हमारे पास है, हम तो कुछ भी बना सकते हैं, बट ये बने बनाए जो आते हैं ना छोटे मोटे, वो पूछ रहा हूँ। Yes. फ्लेवर इसका परफेक्ट है भाई। Its flavor is It's perfect. Its flavor. it tastes Perfect. delicious. It tastes good. It tastes delicious. Appropriate. State appropriate. थोड़ा और चाहिए क्या? Do you want? Do you want more? Get some more. वैसे अंग्रेज आजकल क्या बोलता है, डू यू भी नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा वांट सम मोर। Want some more? शॉर्टकट इतना चल गया ना आजकल। ये घर में भी हम लोग कहते हैं वांट समथिंग, Want डू यू खा ही जाते हैं, कौन उतना बोलेगा। और हिंदी में भी कहते होंगे चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या। अभी डू लगाएंगे तो लोग सोचेंगे Want something more. अभी अंग्रेजी सीख क्या है। और अंग्रेज जब हमारा हिंदी सीखेगा तो बोलेगा क्या आपको कुछ चाहिए, वो भी ऐसे सीखेगा। वो भी पूरा ही बोलेगा। अच्छा कई बार होता है कि हाय तो इतना टेस्टी है कि मैं तो पूरे दिन खा सकता हूँ इसको। It is very tasty. It is very tasty. whole I day. can eat whole day. It's so tasty. I will take it. it's Throughout so the day. delicious. I can take it. I could eat whole day. Can it run the whole day? देखिए एक कॉमन सेंस बताता हूँ, हर जगह काम आएगा। कभी कोई ऐसी चीज़ है कि आप बोलो कि हाय मैं तो इसको पूरे दिन खाऊं, मैं तो 1-1 किलो खा जाऊं, जबकि वो रियलिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ कहने ना। वाली बात है ना। Yes. कभी आपको इतनी थकावट हो, बोलो हाय मैं तो 1 हफ्ते आज ही सो जाऊं, तो ये हो नहीं सकता है। आप सोओगे तो 8-9-10 घंटे में उठ ही जाओगे, 1 हफ्ते लगातार थोड़ी सोओगे। तो ऐसी चीज़ों में इंसान को कुड करके बोलना चाहिए कि आई कुड ईट। It's really delicious. I could eat I it. could eat whole day. होल डे। It's really It's so delicious. I could eat whole day. Means I could hypothetical. eat whole day. It's so delicious. I could eat whole It's day. really delicious. I could eat it whole day. कोई मान लो कि ठीक, आगे देख। मान लो कोई खाना खा रहा है, बोल रहा है कि इसका टेस्ट ऐसा है ना कि इसने मुझे मेरी माँ की कुकिंग की याद दिला दी।
The taste. Her taste remember my mother's. नहीं वो आता है ना Remember my mother बस. इसके लिए एक स्पेशल लफ्ज आया था, इससे याद आया Taste, कि ये it होता है, taste इससे याद आया। remember my mother. So this taste recall my mother. remind me. Remind my Mother mother. Mother Remind taste. me, remember my mother. Remember. क्या Recall है? आएगा शायद. Recall भी एक हाँ. सर इसका ऐसे भी तो होता है, स्पीच ऑफ इट, इस मुझे याद आया, इससे मुझे याद आया। वो तो स्पीकिंग ऑफ इट होता है। स्पीकिंग देखो तो ये क्या जो है एग्जैक्टली? ऑफ इट, अगर कोई आपको किसी चीज की याद दिला दे, उसके लिए वर्ड यूज होता है रिमाइंड। रिमाइंड। और जब आप खुद उसको याद करते हो तो रिकॉल, खुद उस मेमोरी Yes. को लाते हो तो रिकॉल कहते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी याद है तो रिमेम्बर। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार यू नो दिस बिरयानी रिमाइंडेड मी ऑफ माय मदर्स कुकिंग, मतलब मेरी माँ की कुकिंग की याद दिला दी। जैसे मेरी माँ की याद दिलाती तो रिमाइंडेड मी ऑफ माय मदर, मदर पे रुक जाओ। ऐसे होता है। तो ये भी बोल सकते इट टेस्ट pops up my mother's cooking. नहीं भी पॉप्स अप अपने आप कुछ आना होता है, तो इस टेस्ट ने मतलब कुछ ऐसा किया कि मुझे याद आ गया, तो रिमाइंड ही सही। Remind it. टेस्ट Remind my mom's. हाँ, रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर कुकिंग। और क्या बताया सर? रिकॉल यानी हमने उन्हें याद किया। हम जैसे आई एम रिकॉलिंग का मतलब मैं जानबूझ करके पुरानी चीजों को दिमाग में ला रहा हूँ, आई एम रिकॉलिंग। ये होता है। और रिमाइंड में तो कोई चीज आपको कुछ ऐसा वो कर देगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा, यू नो, रिमाइंड हो जाएगा। कहते हैं ना कि यार उसकी शक्ल मुझे किसी की याद दिला रही है, हर फेस रिमाइंड मी ऑफ माय फ्रेंड। अब मैं नहीं खाऊंगा इसको, बाद में खाऊंगा। I will eat it after some time. Later I can. I won't take right now. I will take it later on. इसको मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बचा लेता हूँ। I save it for next time. Left for some time. I'll save it for later. I will eat later. I will eat. मैं बर्तन रात को धो लूंगी भाई। I'll do my I will wash utensils at night. In the night. I will do my utensils. I will do dishes at night. I will do my dishes at night. At night. अरे सिंक पूरा फुल हो गया भाई, पानी निकालो इसका। Sink is full of water. Drain the water. Drain water. Drain the water. The clogged to sink get full. The sinks drain the water. get clogged. क्लॉग भी होता है वैसे, ड्रेन बहुत पॉपुलर वर्ड है। Drain it. हाँ, ड्रेन। Drain it. ड्रेन तो ऐसा है कि Sink is full of water. Drain it. कई बार देखोगे तो वॉशिंग मशीन पे भी कहीं ना ड्रेन लिखा रहेगा। Yes, sir. As if the sink is already full, please drain the water first. ये बोला था ना सेंटेंस तो सर ने। Sink is full. Please drain it immediately. अरे जूने से तो बड़ी स्मेल आ रही है। This very smelly. Juna is very small. Smelly. कई लोग जूना नहीं समझे होंगे तो मैं। नहीं सर, शॉक सर। नहीं बर्तन धोने वाला वो जिससे धोते हैं। जो जूना समझ गया समझो पक्का ठेठ यूपी का है। मैं भी समझ गई। अभी तो जल्दी से बना दिया मैंने। जूना तो पुराना होता है। जूना वो जिससे बर्तन साफ करते हैं। मतलब जाली जिसको कहते हैं। जाली वाला भी है, आजकल बहुत तरह के आते हैं ना, एक ग्रीन से आता है। सभी कोई जानता होगा क्योंकि हर कोई तो धो ही रहा है। सर स्कॉच ब्राइट सर। आता ना स्कॉच ब्राइट। स्कॉच ब्राइट भी आ रहा है वो, लेकिन जूने की अलग बात है। तो जूने को क्या बोला आपने? है और ये है तो लोहे का जूने से ही धुलेगा वो।
तो उसको इंग्लिश में क्या बोला? या तो जूने को स्पॉन्ज कह लो, क्या बोलो अच्छा, क्या नाम स्पंज है? इज Sponge भाई। स्मेलिंग। स्पॉन्ज कह लो, आयरन वाला आ रहा है ना आजकल, आयरन वाला ये तो सब स्क्रबर क्या काम बोले? कर स्क्रबर में क्या? स्क्रबर 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 ही स्क्रबर। स्पॉन्ज तो पर ये सॉफ्ट सही वाला है क्या होता है, सर? सॉफ्ट नहीं स्क्रबर इज होता है वो होता है। स्मेलिंग। एक तो स्पॉन्ज जैसा Sponge. होता है, स्पॉन्ज की तरह रहता है एक। एक उस पे स्पंज पे दूसरी साइड स्कॉच ब्राइट लगा रहता है। हाँ, उस पे थोड़ा सा वो हाँ स्क्रब होते रहता सब कुछ आता है बाजार में, एवरीथिंग। और एक बिल्कुल प्योर लोहे का ही होता है, बॉडी स्टील का बना हुआ। नीड। तो स्क्रबर इज स्मेलिंग सही है क्या? ग्रामर कहता है कि आईएनजी स्मेल में लगाना गलत है, तो स्मेल्स क्या है? यस, स्क्रबर स्मेल्स हाँ। बैड। स्मेल्स, स्क्रबर स्मेल्स। स्क्रबर एक प्रोसेस का नाम है। फिर आप पार्लर में जाते हैं, वहां भी तो स्क्रबर यूज करते हैं, तो एक प्रोसेस का नाम है स्क्रबर। इसका कुछ नाम रख दीजिए भाई, जूना उना का क्या नाम है, ढूंढिए जरा। उस पे जरूर लिखा रहता होगा ना, जूने पे तो लिखा रहता है। क्या स्पॉन्ज क्या नाम? आयरन वाला आता है ना, वो पतला में मोटा, स्क्रबर। हार्ड, सॉफ्ट सब आते हैं बाजार में। मगर कॉमन मेड चीजें हैं, इन पे लिखा नहीं होगा, ये ब्रांडेड नहीं है। जूने को स्क्रबर ही बोलते हैं, स्क्रबर ही स्टील बोलते स्क्रबर। हैं। वैसे तो स्क्रबर स्पॉन्ज को क्या फिक्स है। स्क्रबर स्क्रॉच राइट। कुछ भी कर लो, चाहे फेस साफ स्क्रब कर लो, लेग वो कर लो, या बर्तन कर लो, जूने की कोई इंग्लिश नहीं आ रही। सिंक को कर लो, कुछ भी कर लो। अच्छा आपको अरे उसका लिखना है। पेट थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। His stomach is upset. His stomach is upset. It's upset. लगता है मैंने आज ज्यादा खा लिया। I think I eat more. Please overeat. फैट हो जाएगा। Overeat. Today I overeat. ओवर ईट के ओवर I एट। do. Overeat. I did overeat. Sir, I have Did too नहीं much. है, did नहीं आएगा। अगर I नहीं overeat. बोलना आ रहा है तो नॉर्मल बनाइए ना, आई हैव ईटन I ate too much today, बस ऐसे हो बस, जाएगा ना सर। I ate too much today. वैसे बोल। I eat overeat. I overate. I overate today. अरे उसको Overate. ब्लोटिंग हो गई है भाई, पेट फूल गया उसका। He got He bloated. has. He got bloated. He got bloated. जब ये शॉर्ट हम बना रहे हैं तो हम इसको शॉर्टेस्ट की कोशिश करें ना, सिर्फ जितना छोटा हो सके। ब्लोटेड भी कह सकते हैं, या ब्लोटेड फूल गया है। ये ओवर का ओवर ईट, ओवर एट और ओवर ईटन तीनों फॉर्म में होता है क्या ये ओवर वाला? यार मुझे वो बर्गर खाना नहीं चाहिए था। I shouldn't have taken the burger. Shouldn't have eaten that burger. इस उल्टी जैसा फील हो रहा है यार। I feel like I feel like vomit. I feel like vomit. अच्छा, मैंने देखा है कि अंग्रेज कभी वोमिट नहीं बोलेगा। अंग्रेज वोमिट के लिए एक और वर्ड यूज करते लोग, प्यूक करते, PUK, प्यूक। प्यूक। कई इंग्लिश मूवी जो मैंने देखा है वो प्यूक बोलते हैं। एक बार ढूंढना जरा, प्यूक, PUKE। प्यूक मतलब उल्टी जैसे कुछ आएगा। Yes sir, उल्टी करना। है ना? Yes sir. Sir, I'm sorry. I have to leave because I have to go to police station. My husband lost her phone. ओह, Yeah. चलिए। Okay, sir. Thank you. प्यूक मिल गया ना उल्टी करने को। और एक बिजी करके भी होता है ना, मत सिर घूमना अजीब टाइप में। अच्छा, तो सर घूमना वगैरह, यही उल्टी जैसे। Yes sir. और एक वर्ड आता है जिसमें पता नहीं, इसमें उल्टी और जी मचलाना कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई बोलता है आई फील लिटिल नॉसियस। अभी नौजिया ही बोलते हैं। नौजिया से बना नॉजियस, तो दोनों ही ढूंढ लीजिएगा। अगर आप नौजिया, आपको आई हैव नौजिया कह सकते हो, और अगर आप वैसा फील कर रहे हो तो आप फीलिंग नॉसियस। स्पेलिंग एक बार ढूंढ लीजिए।
स्पेलिंग नॉसियस का एक बार देखिए तो NAU NAUSEA SEOUS वाला एक बार देखिए तो OUS वाला नॉसियस मतलब क्या है? NAUSOUS हाँ जी NAUSEOUS। सर इसमें भी है उल्टी आने जैसा लगना, महसूस होना, हाँ नोशियस। नॉसियस देखिए एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव है क्या? सर ये वर्ब दिखाता है, नहीं नॉसियस वर्ब वर्ब कैसे है, हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है सर। हाँ तो एडजेक्टिव होगा तो फील के साथ इसको लगा सकते हैं कि आई फील नॉसियस। यहाँ तो यही बोला जाता है, तो नोसिया नोसिया करते रहते हैं सब। हाँ एडजेक्टिव है, आई फील आई फील नॉसियस। नोसियस, ये बहुत कॉमन है, मैंने भी बहुत सुना है। NOUSEOUS। हाँ तो नॉसियस बोला कीजिए, इसमें आपको उल्टी जी मचलाना सब आ जाएगा। और प्यूक भी याद रख लीजिए, कई बार अंग्रेज लोग बोलते हो ही स्टार्टेड प्यूकिंग। प्यूकिंग अगर बोले तो समझो कि उल्टी करने लगा। और जो सर इसको कैसे यूज करेंगे? नोजिया जो सर ये बताया NAUSE है। एक बार नॉजिया ढूंढिए, नॉजिया नाउन है क्या? एक बार देखिए तो नॉजिया नाउन है, फिर उसको स्टेट ऑफ पोजीशन में लगाना पड़ेगा। ही हैज नॉजिया, जैसे ही हैज अ फीवर होता है ना, सर नाउन है सर। हाँ तो फिर स्टेट ऑफ पोजीशन में लगाइए। और ये जो एडजेक्टिव है नॉजियस, इसको फील के साथ लगाइए कि वो आई फील नॉजियस। सब ऐसे ही बोल रहे होते हैं, फीलिंग नॉजियस, आई फील सर नॉजियस। इसमें सेंटेंस दे रहा है, देखो आई फेल्ट नॉजिया आफ्टर आई एम ईटिंग, फीलिंग तो नॉजियस। एज अ वर्ब नहीं वहाँ वर्ब वर्ब कैसे सर? नाउन फील आई के साथ फेल्ट नॉजिया आफ्टर ईटिंग। ठीक है, तो फील के साथ नॉजिया भी लगा दी। एक बार नॉसियस को भी देखिए कि नॉसियस के साथ कैसा सेंटेंस बनाया है। सर इसमें भी यही बना, आई फील नॉजियस। ठीक है, अब ये यास्मीन जी अपने बच्चों से पूछेंगी कि वहाँ पे नॉजिया बोलते कि नॉसियस बोलते, दोनों पूछ लीजिएगा। ओके। अंग्रेज लोग क्या यूज नाउन वाला कि एडजेक्टिव वाला? अब है जैसे ऐसा बोलना है कि लगता है कि उसको दूध पचा नहीं, कैसे बोलेंगे? It seemed that I think he couldn't digest the milk. it seemed that he couldn't digest the milk. ठीक है, या नॉर्मल भाषा में मिल्क सूट नहीं किया है कि नहीं? मिल्क डजंट सूट डिडंट कर शी कुड, जैसे couldn't digest the milk भी बोलते हैं। हाँ डाइजेस्ट तो पूरा है। बहुत अच्छा था। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं।